To guide us thoroughly on this lesson, we have Mr. Suleiman Wasif, Associate Chartered Accountant, working as a manager at PwC AFF Ferguson's & Co., with a strong expertise in audit, internal control, and process reengineering. So please join me in welcoming Mr. Suleiman Wasif. Assalamu alaikum everyone, and thank you very much for such a grateful and huge introduction of myself. Let's move on to the presentation. So, impairment of assets. So this is a brief table of content. We'll be going over the introduction, definition, scope of work, and then we'll be calculating impairment loss, and then we'll move on to the details of impairment loss, and then last but not least, as Anil Saab suggested, that we will be looking over some practical issues on the impairment loss. So let's move on to the introduction. Let me just give you a brief introduction that how this standard launched. Ye impairment loss IS 36 was launched in 2001. Before that, it was a part of IS 16 and was incorporated in depreciation, right? So some of us brainstormed that now the world would be having more losses, so we should have a new standard on that as well. So that is why they introduced impairment loss and on April 2001. So what this objective of this standard was, the core objective of the standard was to ensure that an asset must not be carried in the financial statement at more than the highest amount to be recorded. इसका मतलब क्या है? कोई ऑनलाइन पार्टिसिपेंट मुझे बता सकता है? हेलो, एक्सक्यूज मी, आई थिंक ये ऑपरेशन है जी. कोई ऑनलाइन पार्टिसिपेंट मुझे बता सकता है कि इसका क्या मतलब है? I think कोई इतना interested नहीं है, but let's move on. I'll just give you a brief overview. Participant, oh, I'm sorry, participant cannot speak. I apologize for that. So the point was that एक asset cannot be carried at a value more than its recoverable amount. इसका मतलब ये है कि हमें इंश्योर करना होता है कि हर एसेट की जो वैल्यू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्प्ले कर रहे होते हैं या वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो इट शुड बी एक्यूरेट एंड इट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड. So that is why this standard was introduced, to ensure that accurate recording of assets can be made sure. Impairment loss. Impairment loss is the amount by which carrying amount of an asset or a cash generating unit exceeds its recoverable amount. So यहाँ पे कुछ चीजें नोट करने की जरूरत है कि हम कुछ टेक्निकल टर्म्स को यूज कर रहे होंगे, जिसमें ये वैल्यू इन यूज, कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड रिकवरेबल अमाउंट आर पार्ट ऑफ दोस टेक्निकल टर्म्स. Part of those technical terms. So we'll be moving on and we'll be explaining these terms in the next slides. Before moving on to the definitions of those technical terms and before we dive into the details of impairment loss, let me just make sure and let me just state that IS 36 does not apply on all standards, as we all know, right? So the standard at which IS 36 applies is land, buildings, plant and machinery, investment property carried at cost, intangible assets, goodwill, investment, and investments carried at revalued amount under IS 16 and IS 38. Now let's look on those assets at which impairment loss is not applicable, and those are inventories, assets arising under construction contract, deferred tax asset, financial assets, investment property carried at fair value, non-current assets that are held for sale. अब इसकी क्या वजह है कि कुछ एसेट्स के ऊपर IS 36 इज एप्लीकेबल एंड कुछ के ऊपर नॉट एप्लीकेबल? इसकी को रीजन ये है कि इनकी वैल्यूएशन जो है इनके रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स में होती है. जैसे IS 16 है, उसकी IS 2 है इन्वेंट्रीज, उसकी रेलेवेंट वैल्यूएशन हम NRV लॉस में
पढ़ रहे होते हैं IS 2 में. And non-current asset held for sale are already recognized at their fair value or recoverable amount. So that is why IS 36 is not applicable here. Now let's move on to the main crux of the standard calculation of impairment loss. Impairment loss is simply the difference of carrying amount and recoverable amount. So the point here is to note that whenever carrying amount of your assets exceeds its recoverable amount, an impairment of asset exists and you have to record impairment loss in your financial statements, right? So what is recoverable amount? Let's delve into that. Recoverable amount is higher of value in use and fair value less cost to sell. So these are the two technical terms, value in use and fair value less cost to sell. So let's move on and make sure that we thoroughly understand this concept of impairment loss and this concept of value in use and fair value less cost to sell. So let's first discuss fair value less cost to sell. Fair value less cost to sell, as the name suggests, indicate us that how much amount I am going to receive if I sell this a certain type of asset in a free market, right? So fair value can be measured whenever you go in an open market, and my dear friend and colleague here, Monem Islam, shall delve into the details of fair valuation in our next session. But for now, fair value measurement is a part of the process through which we record impairment loss. So we don't just need fair value loss, we need cost to sell as well. The point is that we want to have an amount, a recoverable amount, which we can get, and that is why we need to have net sale proceeds. And for that, we need to have cost to sell as well. That what amount is required for me to spend to sell off an asset, to dispose of an asset. That cost of disposal components can include legal cost, stamp duties, commission cost of removing an asset, because if you can't remove an asset, you can't sell an asset. So that becomes necessary, and that is why this is a cost to sell. So fair value less cost to sell is the simple fact that through this process we get fair value less cost to sell. Even if there is no quoted price in an active market for an identical asset, it may still be possible to measure fair value less cost to sell using estimation techniques. And that estimation techniques will be covered by my dear friend Monem Islam. There are certain situations where fair value less cost to sell cannot be measured. So can any one of you suggest me or tell me that what kind of those assets are there that cannot be measured through fair value less cost to sell? Anyone? Sorry? No. Something else? No? Exactly. Very good. Those assets which are, in our industry, in our work experience, in our world, there are some, everything is not, in sale and purchase in open market. कुछ assets ऐसे होते हैं जो कि हम अपनी specialized needs के ऊपर develop कर रहे होते हैं. तो जब वो अपनी specialized needs के ऊपर develop करेंगे, so that cannot be sold in open market, right? Because they cannot be, nobody needs those assets because they are not useful for them, right? So that is why, sorry. Question. Yeah. बिल्कुल ऐसे ही है, वो IFRS 13 में कंक्लूड होगा. मैं ये कह रहा था कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी एस्टिमेशन टेक्निक जो कि ओपन मार्केट में नहीं होते, एंड देन कम्स that we require some estimation techniques that will be covered in IFRS 13. You are absolutely right. Okay. Taxation के point of view से costing जो है वो IFRS से different होती है. Sorry. Taxation के point of जी इसमें जो costing है जी इसीलिए effect में जो cost जी बिल्कुल ऐसे ही है. टैक्स में क्योंकि आपको पता है टैक्स अकाउंटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू टैक्स. एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसे ही है. तो देयर कम्स द टेम्परेरी डिडक्टेबल डिफरेंस, राइट?
and that is, covered in deferred tax IS 12, and I don't think that is a part of today's topic. Okay, so we are discussing impairment loss, IS 36, and impairment loss deals with the impairment of assets. And what is an impairment of assets? Impairment of asset is when a carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, right? So do you have any concerns over that or any questions over that? If you want to have, I can explain you in detail. Okay, so we were discussing some valuation techniques of impairment loss, right? So impairment loss is calculated. Let me just give you a recap. Impairment loss is calculated when we compare carrying amount from recoverable amount. And recoverable amount, we have two processes for calculating recoverable amount: value in use and fair value less cost to sell. So now we are discussing fair value less cost to sell. So anybody here have any concerns over fair value less cost to sell? No? So now that we have covered fair value less cost to sell, let's move on to the value in use part. And this is, I think, the most tricky part, because this includes a lot of complex calculation, a lot of complex estimations, a lot of complex judgments. So what is a value in use? Value in use is the present value of future cash flows expected from that specific asset, right? So let's move on to the elements of calculation. First and foremost, we have future cash flows, right? Value in use की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हम अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो वैल्यू इन यूज की हम बात जब करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या कैश फ्लोज ये हमें पैसा ये हमें कमा के देगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, एंड दैट बिकम्स द सम ऑफ दैट प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स वैल्यू इन यूज फॉर अस, राइट? सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि एस्टिमेट ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज डिराइव्ड फ्रॉम एसेट यूज एंड डिस्पोजल. The next thing we need to incorporate in the calculation of value in use is the variability. जरूरी नहीं है कि हमारे जो कैश इनफ्लोज होंगे वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हो. लेट्स से मैंने एक प्लांट खोला, राइट? प्लांट बनाया. प्लांट में मुझे जरूरी नहीं है कि जब मैं जो उस प्लांट की प्रोडक्शन होगी उसके जो मैं इन्वेंट्री या उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो जब बेचूंगा तो मुझे कांस्टेंट एक स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू मिलेगी. हो सकता है कि उसमें कुछ वेरिएबिलिटी हो. उस वेरिएबिलिटी के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्लाइमेट बड़ा फैक्टर हो सकता है. द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट वी आर यूजिंग, वो बड़ा इनपुट रिसोर्सेज दैट वी आर यूजिंग, वो बड़ा फैक्टर हो सकता है. और इंटरनल फैक्टर्स में बड़ा कुछ हो सकता है, जैसे मशीन की या प्लांट की एफिशिएंसी जो है वो चेंज हो रही है. तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबिलिटी होती है जो हमने इनकॉर्पोरेट करने होते हैं. Next thing that is very important for value in use is the discount rate that we use. क्योंकि cash inflows जो हम project कर रहे होते हैं वो future होते हैं. And you guys already know that when we want to compare a future value in this present day or point of time, so we have to take discount it back to the present value. And that is where time value of money comes and discount rate comes, right? So let's move on to the composition of future cash flows. Future cash flows include inflows from asset use, outflows necessary for generating inflows attributable to that asset, right? कुछ outflows ऐसे होते हैं जो कि आपको spending करनी पड़ती है ताकि आपके पास पैसा है. One of a simple example is sales commission, right? कि आप लोगों को कमीशन दोगे, वो जाके आपको आपका प्रोडक्ट सेल करेंगे. अगर आप कमीशन नहीं दोगे तो आपको नहीं दे सकते. सो दैट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्यूचर कैश फ्लोज. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट डिस्पोजल एट द एंड ऑफ लाइफ. क्योंकि जो प्लांट या एसेट हमने बनाया है उसको भी तो जब हम बेचेंगे तो हमें कैश मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसके लिए उसको इनकॉर्पोरेट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्लांट की लाइफ को बढ़ा दें उसको यूज नहीं करते. क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो एसेट एज इट इज है विदाउट एनी फ्यूचर एक्सपेंडिचर या उसकी एनहांसमेंट किए बगैर जो उसकी वैल्यू है हमने वो डिटरमिन करनी है. तो जब हम फ्यूचर एक्सपेंडिचर करेंगे उसकी वैल्यू उसकी कैपेबिलिटी एनहांस करेंगे तो फिर इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द एस्टिमेशन स्टेप्स.
Till now, anyone has any question? सर आपका कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, अभी तक सारी समझ आ रही है। चले, एस्टिमेशन स्टेप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर प्रोजेक्शन कैश फ्लोज, तो कोई बंदा मुझे बता सकता है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हुए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? वेरी गुड, कोई और चीज? इन्फ्लेशन, समथिंग एल्स, समवन एल्स? बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम कैश फ्लो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने रीजनेबल एजम्पशंस लेके प्रोजेक्ट करनी होती है, राइट? हमने फ्यूचर, फोर्सिबल फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रिडिक्ट करना होता है कि क्या कैश फ्लोज कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं आज इन्वेस्टमेंट करूं 1 लाख रुपए की एक प्लांट में और मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये मुझे अगले 4 सालों में 10-10 लाख के कैश फ्लोज देगा। इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल, राइट? सो वी हैव टू very intelligently and very sophisticatedly we have to take assumptions that are near to our foreseeable future and that are realistic, right? So that is very important. The next part, as Monem suggested, that we do not have to include any restructuring or enhancement of that asset, क्योंकि अगर हम वो enhancement करेंगे, वो restructuring करेंगे, तो एसेट की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और एसेट की वैल्यू इन यूज बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अभी तक किसी को कोई चीज अगर नहीं समझ आई तो प्लीज, मुझे लगता है सबको सब समझ आ रही है, राइट? ओके, सो फ्यूचर कैश फ्लोज, वन अदर थिंग व्हाइल एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज इज दैट फ्यूचर कैश फ्लोज मस्ट नॉट बी और आइडियली बी एट अ टाइमलाइन ऑफ 5 years। कोई मुझे बता सकता है ये 5 years की क्यों कहा है? सॉरी मोलिम, लेकिन कोई और मुझे अगर बताए तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम। आप में से अगर कोई बताए? कोई भी नहीं? एग्जैक्टली और दूसरा ये है कि देर इज ए पॉइंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन फ्यूचर, राइट? जी सॉरी, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि आइडियली आप 5 साल का टाइम पीरियड ले सकते हैं, बट इफ यू थिंक कि आपका जो पीरियड है वो ज्यादा है और आप उसको रीजनेबली जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आप 5 साल से ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है? And next, last but not least, some additional consideration: asset condition. Cash flow is estimated for the asset as is without future improvement or restructuring unless committed, right? We cannot include future restructuring of assets in valuation of or value in use of that specific asset. Asset life cycle. Forecast should maintain economic benefits without future enhancement. That obviously complement the last point which I shared. And last but not least, net cash flows on disposal. Estimate based on prevailing prices adjusted for inflation unless excluded elsewhere. जैसे मैंने आपको बताया कि at the end of the useful life asset जब हम dispose करेंगे तो उसकी भी कुछ value होगी, right? वो भी कोई ना कोई cash inflow, कुछ ना कुछ cash generate करेगा। Let's say for example ये टेबल पड़ी है, ये 10 साल पुरानी है, इसका यूज भी खत्म हो चुका है और मुझे रिक्वायर्ड भी नहीं है, ये स्क्रैप है, बट इट विल बी सोल्ड फॉर some kind of value, right? चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे वो 50 रुपए हो, चाहे वो 150 रुपए हो, right? It will be sold for that, and we have to incorporate that selling price, that disposal value in our cash inflows to ensure the accuracy of the calculation of our value in use. So, as I suggested that now we have covered value in use and fair value less cost to sell. Can anyone tell me what is the recoverable amount? No? Sorry? Exactly. It is higher of fair value less cost to sell and recoverable and value in use. So there are some specific considerations we need to incorporate while measuring our recoverable amount. Number one, an asset is not impaired if either its fair value less cost to sell or its value in use exceeds its carrying amount. इसका मतलब क्या है?
कि आज मैं बैठा इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने, तो मुझे पता लगा कि अच्छा यार, मैंने असेसमेंट की कि यार मेरे कुछ एसेट्स इम्पेयर हो गए, राइट। तो मैंने उनकी इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन शुरू की। बट जब मैं पहुंचा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर, क्योंकि कैरिंग वैल्यू तो मेरे पास मेरी बुक्स में आ रही थी, जब मैं पहुंचा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में और मैंने जाके मार्केट में एसेट बेचा, तो वो ऑलरेडी मेरी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा आ रहा था। तो वहां पे मुझे अब वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी रिकवरेबल अमाउंट मेरी कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है, राइट। तो इसी वजह से इम्पेयरमेंट करने की जरूरत नहीं है और अपना टाइम और एफर्ट जाया करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। Next point is, a fair value less cost to sell cannot be measured reliably. The recoverable amount must be based on value in use. Value in use is calculated at the present value of expected future cash flows from continuing use and from its disposable at the end of its useful life. कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जहां पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मेजर हो ही ना सके, जिस तरह आपने बताया कि IFRS 13 में जो सेकंड पार्ट ऑफ दैट सेकंड स्केल, आई बिलीव फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन टेक्निक है, उसमें वो बताता है कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अब IFRS 13 की भी जो तीन टेक्निक्स हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए हमें फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो सकती किसी भी तरह। कुछ एसेट्स ऐसे हो सकते हैं, तो तब हम सिर्फ वैल्यू इन यूज ही मेजर करें, right? And that value in use will solely be our recoverable amount and will be compared to our carrying value while calculating impairment loss. Next, fair value less cost to sell represent the amount from selling the asset in an orderly transaction after deducting disposal cost. That is the concept of fair value less cost to sell. A quoted price in an active market is not always required. Estimates can be made using other valuation techniques, and that will be covered in IFRS 13 by Maulana Islam. For assets intended for sale, future cash flows are minimal or negligible. In such cases, recoverable amount will always be equal to fair value less cost to sell, since value in use does not materially exceed. Sorry? Quoted price, bid price, it varies depending on the market you are selling the asset. नहीं, मुझे समझ आ गई। It depends on the market that you are selling. कुछ एसेट्स होते हैं जिनकी बिडिंग होती है, राइट। कुछ एसेट्स होते हैं जो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि शेयर ऑफ अ कंपनी है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और उनकी कोटेड प्राइस मुझे आज भी रियल टाइम में पता होती है, राइट। तो इट मेनली डिफर्स व्हाट काइंड ऑफ एंड डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एसेट दैट यू आर डीलिंग विद। सो उसके हिसाब से ये प्राइस वेरी कर रही होती है, ठीक है। ओके, सो नाउ हमने बात कर ली कि इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इम्पेयर्ड एसेट्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। बिफोर आई मूव ऑन टू दिस टॉपिक, कैन एनीवन फ्रॉम यू टेल मी समथिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक? एक्सक्यूज मी, माइक पास कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड। My dear brother is suggesting that declining sales is one of the component through which we can assess that an asset needs to be impaired. Okay, so if I bifurcate and if I give you a crux, there are two types of factors: internal factors and external factors that suggest us that we need to assess the impairment of certain specific assets. So let's talk about internal assets. The number one reason through internal factors that we can assess that some assets need to be impaired is the obsolescence or damage of the asset. आपको पता है कि recently our country was hit by massive floods, तो जिसकी वजह से obviously लोगों के assets, लोगों के घर, लोगों के offices, लोगों की plant and machineries were affected adversely and significantly. So that was a very major factor which contributed, जिसकी वजह से obviously asset को damage भी हुआ होगा, asset की obsolescence भी हुई होगी, जिसकी वजह से ये एक major factor है जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि अच्छा यार, this assets need to be impaired and assessed for impairment. Next is adverse changes in expected usage. मैं asset use कर रहा हूँ और मुझे उसका उस तरह से return नहीं रिसीव हो रहा जिस तरह से मुझे होना चाहिए था। It can be उसकी plant, let's take an example of plant की efficiency कम हो गई है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपल बाइक।
या गाड़ी या बाइक की माइलेज कम होना शुरू हो गया। लेट्स से मुझे पहले 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज देती थी, अब वो मुझे 5 किलोमीटर के हिसाब से एवरेज देना शुरू हुई। तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग दैट हैज हैपेंड विद दैट एसेट्स दैट विल लीड अस टू मेक श्योर दैट assessment of impairment needs to be conducted for that specific asset. Last but not least, as I suggested, worst performance of asset सही तरह काम ही नहीं कर रहा. So let's move on to the external factors, adverse changes in market condition. कोई बंदा मुझे इसकी practical example दे सकता है? Sorry? I'm sorry. जी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ। साल दो दो 1.5 साल पहले आपको पता है इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर शुरू हुई थी, राइट? एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस एज मुस्लिम्स। उसमें हुआ क्या था? कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू दैट वॉर सच एज कोका कोला और सच एज मैकडोनल्ड्स सेल्स वर हिट एडवर्सली। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट कंडीशन ऐसी हुई थी कि दे स्टार्टेड सप्लाइंग टू इजराइल एंड द कंज्यूमर्स और यूजर्स दैट वर मुस्लिम और that were simply conscious about human life, they started and they felt that this is wrong and they started boycotting those brands. So those conditions led to the obviously declining sales of those brands, and that obviously is a major condition in which one can say that the assets of those companies must be impaired because they are not generating that value that they should be generating for now as they are generating in past, or as they would have been generating if for that matter no war would have been occurred. Next is increase in market interest rate. कोई बंदा मुझे बता सकता है? काफी टेक्निकल चीज है इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। कोई भी नहीं? जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तो क्या होता है जी? इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन से क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाती हैं और जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो जो फ्यूचर कैश फ्लोज मैंने सोचे हुए थे कि लेट से मुझे 500 रुपए आने हैं अगले 5 सालों में, अब अगर मेरे इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं और मैं उसको डिस्काउंट करूंगा तो मेरी पीवी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। 500 रुपए की फ्यूचर की वो वैल्यू नहीं रहेगी जो 500 रुपए की आज है, राइट? ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में हमें यूज किया बताया जाता है। बाइंग पावर और परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। सो दैट इज वाई दैट इज ऑल्सो मेजर रीजन कि जो पैसे उसने मुझे आज कमा के देने थे उस एसेट ने, वो मुझे उसकी वैल्यू वो नहीं है जो मैंने आज रिकॉर्ड की है। एंड दैट इज अगेन अ मेजर एक्सटर्नल फैक्टर फॉर reassessing or assessing the impairment loss of a specific asset. Last but not least, net assets exceed market capitalization. जी, anyone? Sorry? आपका आई थिंक माइक काम नहीं कर रहा। जी, आप दोनों ने बात ठीक की है, बट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक एसेट, राइट? कि एक एसेट की मार्केट वैल्यू है, क्या मार्केट वैल्यू या क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक एसेट इन रेगुलर मार्केट, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस टेबल, राइट? इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लेट्स से हम कहते हैं कि 15 रुपीज है, राइट? और हमने जो नेट एसेट्स या नेट बुक वैल्यू, वैसे दिस कॉन्सेप्ट जनरली रिलेट्स टू कंपनीज, राइट? स्टॉक मार्केट के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज होती है। सॉरी?
The recent FFS of price. बिल्कुल ऐसे ही है। एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन रिड्यूस हो गई, और उसकी आप कुछ वजह बताना चाहेंगे क्यों रिड्यूस हुई? अच्छा, एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन रिड्यूस होगी, इसका मतलब ये था, लेट्स फॉर दैट मैटर टेक हाइपोथेटिकली assume that the share capital or share price of Apple company is $10, right? The price of Apple company, share price of Apple company reduced from $10 to $8, ठीक है? और उसकी नेट एसेट्स की अगर हम बात करें पर शेयर, तो दैट वर ₹9, $9 फॉर दैट मैटर। अब हुआ क्या कि नेट एसेट्स वर वैल्यूड एट अ हायर अमाउंट एंड एक्चुअल वैल्यू दैट वाज ट्रेडेड इन मार्केट या फेयर वैल्यू वाज ट्रेडेड एट अ लेसर अमाउंट, so there would be a difference in the amount and that would be of $1, and that is where in impairment loss comes, क्योंकि हो ये रहा है कि impairment जो net assets या carrying amount of Apple's assets है वो ज्यादा वैल्यू हम कर रहे हैं एज कंपेयर टू उसकी फेयर वैल्यू उसके शेयर की। समझ आइए आप लोगों को कि नहीं आई? आई समझ? क्या कह रहे हैं? नहीं आई समझ? चलो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पहले आप मुझे बताएं क्या चीज नहीं समझ आई इसमें, आखिरी पॉइंट की बात करें ना, क्या चीज नहीं समझ आई? आपसे आप सर इसकी वो भी मिसाल हो सकती है, मतलब मार्केट में एक मशीन है बिल्कुल जिसकी ऐसे, वैल्यू है 100 रुपया, बिल्कुल ऐसे ही, और हमारा एक कंपेटिटर था तो उसने वैसी ही मशीन लॉन्च कर दी लेकिन उससे ज्यादा बेहतर में और कम कम प्राइस में। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारी बुक में या हमारी अमाउंट जो थी वो ज्यादा थी। जी अब हुआ क्या कि ऑब्वियसली कंज्यूमर सस्ती चीज और अच्छी चीज को प्रेफर करेंगे, जी ठीक है? दिस इज द बेसिक एजेंडा ऑफ 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 बाइंग एंड परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन मार्केट। तो ऑब्वियसली हमारी जो गुड्स होंगे वो उस तरह से सेल नहीं हो रहे होंगे, राइट? तो इम्पेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट और हमें असेस करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट के लिए, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन के एग्जैक्टली मैं उसी के ऊपर आ कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि कोई स्पेसिफिक ट्रिगर्स नहीं आए, बट फिर भी अ कंपनी और एंटिटी हैज टू असेस, entity shall assess at the end of each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired or not. अब इस केस में क्या होगा कि हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, इट कैन बी जून और इट कैन बी दिसंबर, एन एंटिटी शेल असेस कि कोई इंडिकेटर्स तो नहीं आए थे जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े हैं, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स तो नहीं आए थे जिसकी वजह से हम कह सकें कि यार इम्पेयरमेंट असेसमेंट करनी पड़ सकती है। अगर आए हैं तो हम इम्पेयरमेंट असेसमेंट करेंगे, अगर नहीं आए तो ऑब्वियसली नो इम्पेयरमेंट needs to be done for our asset because they are valued correctly in our financial statements. जी जी हम्म, माइक माइक जैसे बेसिकली आई वाज आस्किंग कि हर रिपोर्टिंग ईयर एंड पे हम क्लाइंट्स पे एक फेयर वैल्यू रिपोर्ट लेते हैं फॉर द एसेट्स। सो अगर हम टेक्निकली जो जितने भी ट्रिगर्स हैं उनको चेक कर लें तो हर ईयर एंड पे वो रिपोर्ट की जरूरत ना पड़े, बट प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता। हम रिपोर्ट एक पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस बन गया है। जी। अब कुछ एसेट्स, आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, कुछ एसेट्स मैंने बताया था कि दैट आर नॉट पार्ट ऑफ, और वहां पे IAS 36 नहीं लगता। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है? अब उस एसेट के लिए मुझे फेयर वैल्यू की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है? जरूरी नहीं है इंडिकेटर्स हो, जरूरी है इंडिकेटर्स, हो सकता है इंडिकेटर्स हो सकता है इंडिकेटर्स ना हो, बट उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए मुझे फेयर वैल्यू रिकॉर्ड या फेयर वैल्यू रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव अग्रीड ऑन द फेयर वैल्यूएशन ऑफ दैट स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग ऑफ दैट एसेट्स। तो कुछ एसेट्स के लिए हम फेयर वैल्यू ले रहे होते हैं, कुछ के लिए नहीं होते। तो जो आप बात कर रहे हैं वो उन एसेट्स के लिए होगा जिनकी हम फेयर वैल्यूएशन पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे।
कुछ इंटरनल रिपोर्टिंग दैट में इंडिकेट्स एन एसेट इम्पेयरमेंट जब एक्विजिशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सीड्स बजटेड अमाउंट्स। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि हमने, जरूरी नहीं है कि हमें रेवेन्यू या कैश इनफ्लोज के थ्रू ही पता लगे कि यार अच्छा ये एसेट इम्पेयरमेंट के लिए एलिजिबल हो गया है। कुछ में ये भी हो सकता है कि हमारी ओपेक्सेस, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर गई है, जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं कि ऑब्वियसली जब वो एक्सीड करेगी तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो हमारी वैल्यू इन यूज कम होगी, वैल्यू इन यूज कम होगी, इसका मतलब कि इम्पेयरमेंट करने की जरूरत है। यू गॉट दिस पॉइंट? नेक्स्ट इज कैश फ्लो सिग्निफिकेंटली वर्स देन एक्सपेक्टेड। जिस तरह मैंने बताया कि, और डिक्लाइन इन फ्यूचर प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि या तो कैश आउटफ्लोज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या फिर कैश इनफ्लोज बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ये चीज हमें बताती है कि अच्छा यार ये एसेट्स जो है इनमें कुछ मसला है एंड वी नीड टू असेस दीज एसेट्स फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, अब मैंने एक बात अभी आप लोगों को बताई कि वैल्यूएशन या असेसमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस शैल बी कंडक्टेड एट ईच ईयर एंड, राइट, और एट ईच रिपोर्टिंग डे। जरूरी नहीं है कि ये एसेट्स हर साल हम इम्पेयरमेंट लॉस के लिए असेस करें। एंड व्हाई इज दैट? द मटीरियलिटी प्रिंसिपल। द मटीरियलिटी प्रिंसिपल अलाउज एंटिटी टू अवॉइड रीअसेसिंग asset impairment if prior valuation showed a significantly higher recoverable amount than the carrying amount, number one, and no adverse changes has ever occurred। इसका मतलब क्या है कि जब लास्ट टाइम हमने वैल्यूएशन की थी, वैल्यूएशन रिकवरेबल अमाउंट की, तो वो रिकवरेबल अमाउंट वाज एक्सीडिंग सिग्निफिकेंटली एज कंपेयर टू आवर कैरिंग अमाउंट। लेट्स अज्यूम ये पानी की बॉटल है, इसकी कैरिंग वैल्यू मेरे पास थी 20 रुपीज, इसकी रिकवरेबल अमाउंट फॉर दैट मैटर आ गई मेरे पास 100 रुपीज या 150 रुपीज, दैट इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट। एंड नंबर टू, कि कोई एनवायरमेंट में कोई चेंज नहीं आया था, कोई यूज में कोई चेंज नहीं आया था, कोई एडवर्स चेंज उसकी एनवायरमेंट या उस बॉटल की यूजेज से रिलेटेड नहीं आया था, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऑल सर्कमस्टांसेस बीइंग कांस्टेंट एंड वी हैव ऑब्वियसली कैरिड आउट impairment assessment last year, so we don't need to carry out further impairment for this asset, right? Any questions regarding this? Now let's move on to, हमने ये भी पढ़ लिया कि impairment loss क्या होता है। We also have studied impairment loss calculate कैसे करते हैं। We have also delved into कि impairment loss की conditions क्या होते हैं या factors क्या होते हैं। Now let's move on to the recording part of impairment loss, that is जो हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, reporting of our financial statements। So two different types of model जो कि impairment loss के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला है कि cost model। For assets measured using the cost model, the impairment loss is recognized directly in profit or loss। Since cost model is followed, fair value is not updated at year end at for net book value calculation। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक, लेट से मैं अज्यूम करता हूं कि हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू कर रहे थे हम कॉस्ट मॉडल के ऊपर, हमें लगा इसकी इम्पेयरमेंट करने की जरूरत है। जब हमने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की तो दैट वाज ग्रेटर लेस देन कैरिंग अमाउंट, जिसकी वजह से हमें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना पड़ा और हमारे पास एक अमाउंट आ गई इम्पेयरमेंट लॉस। अब अगर ये कॉस्ट मॉडल की इम्पेयरमेंट लॉस की प्लांट एंड मशीनरी है तो वी विल डायरेक्टली रिकॉर्ड इट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड साइमल्टेनियसली, क्योंकि डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज एसेट टू द एक्सटेंड ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल की, तो रीवैल्यूएशन मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल में आपको पता है कि हम हर साल वैल्यू सेस कर रहे होते हैं और जो डिफरेंस आता है उसको हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जा रहे होते हैं। एंड सिमिलरली वी आर कैलकुलेटिंग अ पार्ट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, राइट? यू गाइस रिमेंबर दैट, राइट? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन सरप्लस में से नेट हो रहा होता है। Similarly, if the asset is carried at revalued amount under another standard such as IAS 16, the impairment is treated as a revaluation decrease and recognized in other comprehensive income, but only to the extent that it offsets any existing revaluation surplus for that asset। समझ आई? सेम कॉन्सेप्ट है जैसे revaluation surplus है। जैसे
आप समझें कि इम्पेयरमेंट लॉस नहीं, ये रिवैल्यूएशन लॉस है। रिवैल्यूएशन लॉस जब आता है तो हम कैसे ट्रीट करते हैं? पहले क्या करते हैं, पहले जो एग्जिस्टिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होता है हम उसको खत्म करते हैं, और फिर जो डिफरेंशियल होता है बाकी सारा उसको हम पीएनएल या ओसीएम में रिकॉर्ड करें। तो सिमिलरली इम्पेयरमेंट लॉस को भी हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। Some key points which I would like you highlight to you guys is that if the impairment loss exceeds the assets carrying amount, a liability is recognized only if required by another accounting standard. इसका कोई मुझे मतलब समझा सकता है? Let's say मैं आपको एक hypothetical example देता हूँ कि let's take an example of this chair, right? इस चेयर की कैरिंग अमाउंट थी 10 रुपीज, राइट? इसकी जब हमने रिकवरेबल अमाउंट और हर चीज कैलकुलेट की तो हमें पता चला कि हमारी जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो तो नेगेटिव में आ रहा है। तो क्या हम एक एसेट को नेगेटिव में लेके जाएंगे? एग्जैक्टली क्या क्या ये सवाल है मेरा? बिल्कुल ऐसे नहीं लेके जाएंगे, हम उसे जीरो करेंगे, और उसमें दो तीन कंडीशंस हैं। नंबर वन चीज ये है कि एक एसेट कभी भी नेगेटिव अमाउंट में नहीं हो सकती, ठीक है? तो उसको हम जीरो करेंगे। दूसरी चीज ये है कि नेगेटिव अमाउंट में अगर हमने लाइबिलिटी करनी ही है रिकॉर्ड, तो हम वहां पे रिकॉर्ड करेंगे जहां पे एक एलिमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है कि मैंने इंपेयरमेंट की, और लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मेरे पास एक फोन था, राइट? अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मेरे पास एक फोन था, राइट? वो था 100 रुपए का, या थोड़ा सा रीजनेबल कर देते हैं, ₹1,00,000 का फोन था। वो ऑब्वियसली गिर गया, ठीक है? गिर गया तो उसकी सारी वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है? अब गिरने के बाद वो मैंने एसेट किसी से लिया हुआ था, और कुछ कंडीशंस के ऊपर कि मैं अगर उसे वापस ना करता तो मुझे कुछ पेमेंट करनी पड़नी। अब एसेट तो खत्म हो गया, वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन मुझे उस बंदे को जिसका एसेट है उसको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी, राइट? लेट से 10,000 रुपए कि तुमने मेरा एसेट तोड़ दिया या खत्म कर दिया, जो फॉर दैट मैटर मेरे पास वापस नहीं आया, तो मुझे पैसे पे करो। तो दैट बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ लाइबिलिटी कि अब मेरे पास लाइबिलिटी भी आ गई, तो उस केस में मैं फिर लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करूं। डिड यू गेट दिस पॉइंट? समझ आ गई? ओके, so following the impairment, another main point, following the impairment, future depreciation or amortization must be adjusted to reflect the asset's new carrying amount and remaining useful life. इसका क्या मतलब है? दोबारा पढ़ के बताओ। इसका मतलब ये है कि एसेट की जब कैरिंग वैल्यू चेंज होगी तो उसकी नेटबुक वैल्यू भी चेंज होगी, ऐसे ही है। और जो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो भी चेंज होगी, ऐसी है ना? क्यों? क्योंकि अब कैरिंग नेटबुक वैल्यू वो नहीं रही जो पहले थी, तो हम उस नेटबुक वैल्यू को चेंज करेंगे, उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज। हम्म हम्म अब आप फॉर एग्जांपल हम्म बैंक में हमें गाड़ी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तो है, फॉर एग्जांपल 6 मिलियन 7 मिलियन बैंक ने हमें गाड़ी की हैंड ओवर कर दी, ठीक है? लेकिन हमने कितनी पेमेंट की? हमने उनको 18,20,00,000 रुपया दिया था, और गाड़ी हमने हमारे उसके ऊपर हो गई। तो जब हमें इसको रिपोर्ट करना है तो रिपोर्टिंग में जो है क्या लायबिलिटी, वो गाड़ी की पूरी कीमत दिला के लायबिलिटी शो करेंगे, या जस्ट जो हमने डाउन पेमेंट की है उसको ही मतलब आप टैक्स रिटर्न में बात करें ना? जी, टैक्स में बेसिकली क्या होता है कि टैक्स डज नॉट कंसिडर IFRS 16 इन लीज, ठीक है? तो होता ही है कि टैक्स में आपका वो एसेट है ही नहीं, टैक्स समझता है वो एसेट है ही बैंक का, और आपने उसको लीज पेमेंट या रेंट दिया है। तो जो आप डिडक्शन रिकॉर्ड करेंगे और जो आपने डाउन पेमेंट बताई है, ये सारी एज ए डिडक्शन रिकॉर्ड करेंगे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, अगर आपका बिजनेस है, ठीक है? क्योंकि इंडिविजुअल में तो डिडक्शन मिलती ही नहीं है। तो जो ये आपकी टैक्स रिटर्न में, अगर फॉर दैट मैटर में अगर क्रक्स बताऊं, तो टैक्स रिटर्न में आपका एसेट कोई नहीं रिकॉर्ड होगा, ये आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगी या डिडक्शन रिकॉर्ड होगी। समझ आ गई?
जी, now let's talk about cash generating unit and corporate assets. Cash generating unit. Cash generating unit refers to the concept that the smallest identifiable group of assets generating independent cash inflows. कोई मुझे बताना चाहेगा सीजीयू क्या होता है, कैश जनरेटिंग यूनिट, जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई पढ़ के? एग्जैक्टली और कैश जनरेटिंग यूनिट्स का कॉन्सेप्ट ही पिक्चर लेंगे आप। कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट ही ये है कि कुछ एसेट जो है वो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो नहीं बना सकते होते, राइट? वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस रूम, राइट? यहाँ पे चेयर्स भी हैं, टेबल्स भी हैं, प्रोजेक्टर्स भी हैं, बैनर्स भी लगे हुए हैं, बिल्डिंग भी है। अब हर एसेट, जैसे ये चेयर्स हैं या ये टेबल्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं करता, बट इट कंट्रीब्यूट्स टू दिस रूम कि यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, लोग पे करते हैं फॉर दैट मैटर, और जिसकी वजह से कैश इनफ्लो होता है। तो इंडिपेंडेंटली नहीं करते कैश जनरेट ये लोग, बट these assets depends on some other assets, and they as a whole contribute towards the cash inflows for that matter. So उसको हम रेफर करते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार ये कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है और कैश जनरेटिंग यूनिट की इम्पेयरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो कैश जनरेटिंग यूनिट तो मैंने आपको समझा दिया, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे बताइए। नहीं है? इम्पेयरमेंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट आते हैं। इसकी इम्पेयरमेंट बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट होनी है जैसे एक नॉर्मल एसेट की इम्पेयरमेंट कैलकुलेट होती है, ठीक है? इम्पेयरमेंट इंडिकेशन भी एग्जैक्टली सेम है कि रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कैरिंग अमाउंट से कम हो तो हमें पूरे सीजीयू को इम्पेयर करना पड़ेगा, ठीक है? जजमेंट जो है, एक ये चीज है कि अब यहाँ पे जजमेंट आती है कि कौन कौन से एसेट जो है एक सीजीयू में आते हैं, एक कॉस्ट कैश जनरेटिंग यूनिट में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पूरा रूम मैंने एक हाइपोथेटिकली मैंने जूम किया कि ये एक कैश जनरेटिंग यूनिट, ठीक है? तो उसके लिए क्या चीज जरूरी होती है? उसके लिए जरूरी होती है कि ऑपरेशनल मॉनिटरिंग एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कैश इनफ्लोज। ये दो एलिमेंट्स हमें बताएंगे कि कौन कौन से एसेट should be and would be a part of a certain cash generating unit, right? Understood? Next we move on to the recoverable amount calculation, and the recoverable amount calculation is exactly same, fair value less cost to sell in value in use. And last but not least, incorporate only those assets and CGU that contribute to its cash inflows, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। Now let's move on to the calculation and recording of the impairment loss of a CGU. Criteria क्या है impairment loss का? Occurs when the recoverable amount is less than the carrying amount, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है? मैंने जिस तरह आपको बताया कि impairment loss of CGU is exactly the same as impairment loss of a single asset with some minor changes, and that minor changes are loss allocation. अब ये loss allocation क्या है कि इस रूम में, मैं इस रूम की एग्जांपल लेता हूँ, इस रूम की हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की एज ए सीजीयू एंड वी केम टू फाइंड दैट दिस रूम नीड्स टू बी इम्पेयरमेंट एंड एन इम्पेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट्स। अब होगा क्या कि ये इम्पेयरमेंट लॉस इस सीजीयू का है, इन एसेट्स का नहीं है, एंड वी हैव टू फाइंड इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ दीज स्पेसिफिक एसेट्स, राइट? तो वहां पे हम क्या करेंगे? हम लॉस एलोकेशन करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या इस रूम की कोई गुडविल रिकॉर्ड हुई भी थी। ये एक सिंपल सा मैं आपको ना जैसे आसान बात में ये भी कहते हैं फक्की कि गुडविल अगर किसी जगह पे भी हमने सीजीयू में रिकॉर्ड की है तो सबसे पहले गुडविल को खत्म कर, ठीक है? मैं फॉर दैट मैटर एजम्पशन लेता हूं कि 100 रुपीज का इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट किया हमने एज ए सीजीयू, ठीक है? उसमें से हमने देखा कि हमने 20 रुपए की गुडविल हमारी बुक्स में आ रही थी, तो 100 - 20 व्हाट विल बी द रिमेनिंग इम्पेयरमेंट लॉस? 80 रुपीज, एंड 80 रुपीज विल बी एलोकेटेड to all these assets, these chairs, these tables, these projectors, these lights on pro rata basis based on their carrying value, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन? किसी का कोई सवाल? अच्छा, जब हमने ये कर लिया तो हमारी इंडिविजुअल एसेट्स की इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास आ गई, बट यहां पे भी एक केवियट है, हमें एसेट फ्लोरिंग के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, उसे नहीं भूलना चाहिए कि हमने
₹80 का इम्पेयरमेंट लॉस तो कैलकुलेट कर लिया जो कि इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर डिवाइड होगा, लेकिन हमने मेक श्योर ये भी करना है कि इंडिविजुअल एसेट्स की जो फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज है उससे वो कम ना हो, क्योंकि देन अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक एसेट की अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर मैंने ज्यादा की वैल्यू उस एसेट को प्रोरेट कर दी जो कि उसकी वैल्यू को उससे नीचे ले जाता है, जो कि उसकी इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट होती है, so that would again go against the principles and rules of impairment loss standard. So that is why asset flooring concept is very important and very necessary while calculating impairment loss of CGU. आप लोगों को समझ आई? आपको समझ आई? कोई कंफ्यूजन किसी को? Now let's talk about corporate assets. Corporate assets in CGU. Corporate assets क्या होते हैं? Exactly. Thank you very much. Corporate assets are those assets that do not generate cash flows independently. And the impairment of, क्योंकि asset तो वो भी है, ठीक है, वैल्यू तो उसकी भी कोई ना कोई है, और उसकी इम्पेयरमेंट असेस की जाती है थ्रू रिलेटेड CGUs. ठीक है, एंड दैट इज वाई टेस्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स जो होती है वो इंडिविजुअल CGU में उसकी जब हम कैश जनरेटिंग यूनिट एक बनाते हैं तो हम उस कॉर्पोरेट एसेट को डिवाइड कर देते हैं कि कितने % कंट्रीब्यूट करता है ये CGU में, एंड दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक CGU, और फिर उस CGU की जब इम्पेयरमेंट होती है तो उसकी वजह से कॉर्पोरेट एसेट्स की इंडिविजुअली इम्पेयरमेंट हो जाती है। ठीक है, one more thing, the distinctive characteristics of corporate assets are that they do not generate cash inflows independently, number one, of other assets or group of assets, and their carrying amount cannot be fully attributed to the cash generating unit. जिसमें मैंने आपको बताया वो डिवाइड करनी पड़ती, ठीक है, वो से किसी एक स्पेसिफिक कैश जनरेटेड यूनिट से पर्टेन नहीं करता। अगर वो करता होता तो वो सारा CGU का पार्ट बन जाता, फिर कॉर्पोरेट एसेट्स के पॉइंट ही ना रहता। किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू दिस? Okay, so now that we have discovered and understood the concept of impairment, its recording, its assessment, and its calculation, now let's move on to the reversal of impairment loss. कोई मुझे बता सकता है इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल भी कोई चीज है, या किसी ने आज तक देखा हो इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हुआ है? नहीं, क्योंकि आज तक मैंने भी नहीं देखा कि इम्पेयरमेंट लॉस, प्रैक्टिकली नहीं देखा कि इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हुआ हो। हम इम्पेयरमेंट, मैं आपकी एग्जांपल बिल्कुल दे देता हूँ, बिल्कुल आपको मैं एग्जांपल दूंगा। जिस तरह आपने एप्पल की एग्जांपल बताई थी कि एप्पल की आपने कहा कि शेयर प्राइस मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगी जिसकी वजह से हमें इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ी। ठीक है, अब एप्पल ने रिसेंटली iPhone 17 लॉन्च की और उसकी जो शेयर प्राइस है वो छत्ते पहाड़ के निकल गई है, या फिर रिलेटिवली बढ़ गई है एज कम्पेयर टू जिस तरह इन्होंने बताया कि डिजाइन की वजह से कम होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ये चीज आ गई, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस एक असेसमेंट ही है, तो यहाँ पे ये चीज आ गई कि कंडीशन जो है वो चेंज हो गई है उस स्पेसिफिक एसेट की, और अब उस एसेट की जो वैल्यू इन यूज है और जो रिकवरेबल अमाउंट है दैट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू कैरिंग अमाउंट। और एक और चीज कि उसकी कैरिंग अमाउंट जो है इज नॉट एन एक्यूरेट रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ द बेनिफिट्स विल फ्लो इन विद रिस्पेक्ट टू दैट एसेट टू द एंटिटी। समझ आइए आपको कि लेट्स से ये एग्जांपल है, मतलब 10 रुपए की या मैं एग्जांपल देता हूँ 100 रुपए की 1 लाख की हमने बाइक ली। अब बाइक हमने इम्पेयरमेंट लॉस से कर दी थी 50,000 की। अब हाइपोथेटिकली फॉर सम रीजंस बाइक की एफिशिएंसी बढ़ गई, बाइक की माइलेज बढ़ गई, बाइक की डिमांड बढ़ गई, तो हुआ क्या कि अब उस एसेट की वैल्यू 50,000 रुपए नहीं है। मैं अगर इसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो मुझे 50,000 नहीं मिलेगा, मुझे ज्यादा मिलेगा, और जो अगर मैं 50,000 पे रिकॉर्ड करता हूँ तो दैट वुड मेक माई एसेट मेक मी अंडरस्टेटेड ऑफ माई एसेट, राइट? So that is not a true reflective of that the benefits of those assets. So that is why we have to reverse those impairment loss. उसके कुछ indicators हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि a significant increase in assets value, जिस तरह मैंने आपको बताया बाइक की वैल्यू बहुत बढ़ गई, मतलब वो एंटीक्स में आना शुरू हो गई और उसकी एकदम से डिमांड बढ़ गई। ठीक है,
favorable changes in the external environment. A decline in market interest rate are likely to increase assets recoverable amount. ठीक है? Significant favorable changes in how and how much the asset is used include enhancement cost or operational restructuring, internal reports that show that economic performance is better than expected. जो हमने एक्सपेक्ट किया था जब हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करा, तो अब हम इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स करेंगे. लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हम सारा का सारा इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं कर सकते. वी विल रिवर्स द इम्पेयरमेंट लॉस सब्जेक्ट टू द लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, जो उसकी रिकवरेबल अमाउंट है, या फिर नेट बुक वैल्यू दैट वुड हैव बीन हैड द एसेट नॉट बीन इम्पेयर्ड एट ऑल. ये बात आप लोग समझ आती है कि अगर मैं रिकवरेबल अमाउंट से उसकी कैरिंग वैल्यू, मतलब इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, कैरिंग वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है. और अगर मैंने इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो गई है, तो वो मुझे फिर दोबारा इम्पेयरमेंट करनी पड़ेगी. तो इसीलिए हम रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, या फिर उस वैल्यू से कि अगर हम उसकी इम्पेयरमेंट ना करते तो आज उसकी क्या वैल्यू होती वो, और उसका लोअर. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें याद रखने की जरूरत है जब हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करते हैं. ओके, सो ये तो थियोरेटिकल पार्ट हमारे पास हो गया. लेट्स नाउ मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल इश्यूज दैट आई हैव फेस्ड एंड दैट वी हैव फेस्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इम्पेयरमेंट लॉस. राइट, सबसे पहला इशू, एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज. कुछ मैनेजमेंट्स को पता ही नहीं होता कि भाईजान मेरे एसेट्स की फ्यूचर कैश फ्लो प्रोजेक्शंस क्या है. ठीक है, उनके पास सिग्निफिकेंट जजमेंट ही नहीं होती, या उनके पास उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं होती कि वो जज कर सकें कि यार मेरे एसेट ने कितने कैश इनफ्लोज फ्यूचर में मुझे देने. राइट, उसकी रेजोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है? यूज रीजनेबल एंड सपोर्टेबल एजम्पशंस. ठीक है, हम अपने एसेट्स को ऑब्वियसली अगर जब भी हम कैश इनफ्लोज लेके चलते हैं, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे एसेट्स जो कैश इनफ्लोज होते हैं, दैट शुड बी रीजनेबल एंड दैट शुड बी जस्टिफाइबल टू एनी थर्ड पार्टी. राइट, हम बस हवा में कैश इनफ्लोज नहीं लिख सकते कि अच्छा यार यही एसेट्स हैं. उसके पीछे एक एजुकेटेड गेस या एजुकेटेड फोरकास्ट हमें बनानी पड़ती है कि ये होगा तो इसको, इससे इतने प्रोडक्ट्स निकलेंगे, इन प्रोडक्ट्स को मैं सोल्ड करूंगा तो मुझे इतना रेवेन्यू मिलेगा, जिसकी वजह से मेरे पास इतने कैश इनफ्लोज आएंगे. समझ आइए. द नेक्स्ट इज ये कैश फ्लो प्रोजेक्शन में हम इनकॉर्पोरेट करें हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, मार्केट रिसर्च और एक्सटर्नल इंडस्ट्री डाटा. दैट गिव्स अस a very good idea that how my inflows are going to be changed in future. Right, and last but not least sensitivity analysis हम कर लें कि अच्छा यार फ्यूचर कैश इनफ्लो जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, इसमें मैं अगर डॉलर रेट चेंज करूं तो क्या इफेक्ट आएगा या कितना इफेक्ट आएगा, इसमें मैं इन्फ्लेशन रेट चेंज करूं तो कितना इफेक्ट आएगा. इस सेंसिटिविटी एनालिसिस से हमें पता लगता है कि यार हमारे कैश इनफ्लोज कितने सेंसिटिव और कितने रिलायबल हैं कि हम इसको यूज कर सकते हैं वैल्यू यूज के लिए. Next is also a very important point which I have also encountered while auditing. Determining appropriate discount rate. Discount rate is, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे important factor जो है कैश इनफ्लोज वैल्यू यूज निकालने में, वो डिस्काउंट रेट है. अगर हम कैश इनफ्लो सही प्रिडिक्ट भी कर लेंगे लेकिन डिस्काउंट रेट सही यूज नहीं करेंगे तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू सही नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू इन यूज सही नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारी इम्पेयरमेंट लॉस गलत रिकॉग्नाइज होगी. किसी का इस पे कोई क्वेश्चन या कोई सवाल या कंसर्न, या कोई अगर कोई पॉइंट शेयर करना चाहिए कोई नहीं तो वो भी. रेजोल्यूशन के ऊपर आते हैं इसके कि सबसे पहले तो यूज अ प्री टैक्स डिस्काउंट रेट कंसिस्टेंट विद करंट मार्केट. इसका मतलब यह है कि जब भी हम कैश फ्लो प्रोजेक्शंस कर रहे होते हैं ना, हम एक assumption लेते हैं कि वो प्री टैक्स होंगे. टैक्स जो होता है वो एक एक्सपेंडिचर नहीं होता, हम उसको कंसिडर नहीं करते कि वो एक एक्सपेंडिचर है रिलेटेड टू कैश इनफ्लोज. क्यों? क्योंकि टैक्स तो देना ही देना भाई, वो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है, टैक्स तो देना ही देना है, चाहे वो एसेट हो चाहे वो कोई और चीज हो, चाहे वो एक एसेट हो चाहे वो दूसरा एसेट हो, टैक्स तो देना ही देना है. तो दैट इज व्हाई वी यूज प्री टैक्स डिस्काउंट रेट. नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यू गाइज ऑब्वियसली हैव heard of this term a lot in BFD, लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हमने कैलकुलेट करनी होती है कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है. कोई मैं बता सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे यूज होती है?
गैस कर लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है? बिल्कुल ठीक है। एक और तरीका भी होता है कि कुछ केसेस में कुछ कंपनी ने एग्जिस्टिंग बोरोइंग भी ली होती है। अगर आप देखेंगे ना तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी होती है, शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी भी होती है, उसमें कंपनी को कुछ इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है। सो उसका अगर हम वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालें उन बोरोइंग्स का, तो हम एक ब्रीफ एग्जाम्पशन ले सकते हैं कि आज अगर ये कंपनी जाए मार्केट में बोरोइंग करने तो उसको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एंड दैट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपनी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आइडेंटिफाइंग इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। ये एक बहुत टैक्स ले लेंगे, मेजर मेजर फर्क क्या आएगा? मेजर फर्क उस तरह से कोई भी नहीं है। हमेशा हर जगह लिखा होता है प्री टैक्स, जी। लेकिन बेसिस एग्जैक्टली नहीं कभी अंडरस्टैंड हुई कि क्या वजह है, मतलब प्री पोस्ट टैक्स लेने से ऐसा क्या फर्क पड़ेगा जो प्री टैक्स से नहीं पड़ रहा? कुछ एक्सपेंडिचर और कुछ रेवेन्यूज होते हैं जिनमें टैक्स इम्पैक्ट करता है और कुछ में नहीं करता। जैसे कुछ एग्जेम्प्ट चीजें होती हैं, तो अगर हम उन एग्जेम्प्ट चीजों को टैक्स में ले आते हैं और हम पोस्ट टैक्स रेट यूज कर लेते हैं और हम नेट करते हैं जो कि एक्चुअली नहीं होना था, तो उससे हमारी कैश इनफ्लो चेंज हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? तो जिसकी वजह से हमारी फिर पीवी भी चेंज होगी और वैल्यू न्यूज भी चेंज होगी। तो दैट इज वाई इट इज अप्रिशिएटेड कि हम प्री टैक्स रेट ही लेके चलें, जिसकी वजह से हमारा जो वैल्यू न्यूज है वो सही है। आइडेंटिफाइंग इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट, ये इशू कैसे है, कोई मुझे बता सकता है? लिखा हुआ है यार कि कुछ कंपनीज दे आर एंगेज्ड इन अदर वर्क एंड अदर ऑपरेशन सो मच दैट दे डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू असेस द इम्पेयरमेंट ऑफ देयर एसेट्स। और एक और रीजन भी हो सकती है कि कंपनी इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करवाना ही ना चाह रही है। उसमें मसला ये होता है कि कंपनी के पास बाकी एंगेजमेंट्स इतनी ज्यादा होती हैं कि जिसकी वजह से वो कहता है कि यार इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करने की मुझे जरूरत नहीं है या मेरा टाइम जाया हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है या हम किस तरह रिकग्नाइज कर सकते हैं? हम जिस तरह मैंने आपको बताया एक्सटर्नल इंडिकेटर्स देखेंगे, हम इंटरनल इंडिकेटर्स देखेंगे और उससे हम रिकग्नाइज करेंगे कि अच्छा यार एक असेसमेंट करेंगे कि यार क्या इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करने की जरूरत है या नहीं है। मैंने आपको अगर आपने लास्ट टाइम देखी हो इम्पेयरमेंट टाइमिंग ऑफ इम्पेयरमेंट में मैंने बताया था कि एंटिटी शेल असेस, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है एंटिटी शेल असेस द इम्पेयरमेंट ऑफ इट्स एसेट एट ईच रिपोर्टिंग डे। और उसके नीचे आप ही का जवाब था कि जरूरी नहीं है कि हर साल इम्पेयरमेंट करे या इम्पेयरमेंट असेसमेंट करे। अगर पिछले साल जब उसने असेसमेंट की थी तो उसकी रिकवरेबल अमाउंट बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू इट्स कैरिंग वैल्यू, और पिछले साल से इस साल के दरमियान कोई इस तरह की चेंज आई नहीं थी कि जो अफेक्ट करे उस एसेट। ठीक है, तो ये चीज है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, व्हाई इज इट एन इशू? तो ये बता सकते हैं? कुछ कुछ कंपनीज होती हैं कि जो जैसे जिसमें मैंने आपको बताया इम्पेयरमेंट असेसमेंट एक तो होती है रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, और एक कुछ सिग्निफिकेंट इश्यूज आ जाते हैं या सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर जाते हैं एकदम कि जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट करनी पड़ती है, आई एम सॉरी, इम्पेयरमेंट करनी पड़ जाती है, राइट? तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम या कंपनी या मैनेजमेंट मेक श्योर कि टाइमिंग ऑफ इम्पेयरमेंट असेसमेट इज एक्यूरेट, so that the recording of assets in financial statements are accurate and they represent the true and fair view of those assets. देखें, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्लड्स आ गए, अब इट इज हाईली सर्टेन कि मेरा एसेट उस तरह से काम करेगा ही नहीं जिस तरह से वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करता है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशंस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स फॉर दैट मैटर दैट आर हैपनिंग टू द
द कंपनी. टाइमिंग ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम एक तो एनुअली इंश्योर करें कि यार एनुअली एक इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का क्राइटेरिया बनाएं और प्रोसीजर बनाएं कि अच्छा यार प्रोटोकॉल बनाएं कि इस तरह से इम्पेयरमेंट टेस्ट होगी. और दूसरा ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया व्हेनेवर देयर इज एन इंडिकेटिव ऑफ इम्पेयरमेंट इज प्रेजेंट, तो उसमें हम बनाएं. So this was a brief introduction of impairment loss and the practical issues of impairment loss. There are some disclosure requirements that permits and that allows us we have to make certain disclosures in the financial statements. So disclosure by सबसे पहले the disclosure by class of asset, उसमें amount of impairment loss recognized in P&L during the period, amount of reversal of impairment loss in P&L, impairment loss on revalued asset recognized in OCI. ये चीजें हैं जो कि हमने ड्यूरिंग द पीरियड अगर हुई हैं तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करनी ही करनी है. ठीक है, रिपोर्टिंग सेगमेंट्स आ जाता है. रिपोर्टिंग सेगमेंट में ये चीजें हैं जो हमने डिस्क्लोज करनी होती है. एंड कुछ अदर डिस्क्लोजर्स हैं जो कि इवेंट और सर्कमस्टांसेस को भी बताते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस हमने रिकग्नाइज कर लिया, लेकिन हमें ये भी डिस्क्लोज करने की जरूरत है कि क्यों, क्या ऐसे इवेंट सर्कमस्टांस हुए थे जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करवाना पड़ा. सो thank you very much. This is it from my side, and on to the respectable host of our today's event. Thank you very much. Amish.